नाउ जो हम अब न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन फैक्ट, मीन्स इट्स अ वेरी नाइस चैप्टर because it is dealing with what actually the new business era is. हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा था मीन्स द फर्स्ट चैप्टर विच वी हैड डन दैट इज अबाउट हिस्ट्री एंड द evolution of business in India, right? The second chapter we had done about the kind of enterprises, the kind of business that India is having. The third मतलब वो हमारा जो था that is also called as a traditional business style. That is what we call as public sectors and private sectors, or if we say that we have partnership, sole proprietorship, joint Hindu, ये सारे हमारे जो है ट्रेडिशनल है. एंड थर्ड इसके बाद हमने उसी के थोड़े से हिस्से पढ़े थे एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द सर्विसेस. राइट नाउ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दिस इज अबाउट द न्यू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. और आप लोग मीन्स यू द करंट एरा, आप लोग जो जितने भी बच्चे हो, यू ऑल आर belonging to this era. This is because right now more than the traditional business, all the traditional business, whether it is a sole proprietorship, whether it is a joint venture, whether it is a partnership firm or any other business, आज की डेट पर सारे businesses जो हैं वो आपके जो है न्यू स्टाइल ऑफ बिजनेस पे जा चुके हैं. दैट इज यूजिंग द इंटरनेट और व्हाट वी कॉल एज ई बिजनेस. Right now I am taking it with Subhash De. Later on I'll take it with NCERT. Right now what is e-business? Very simple, electronic business. How it is different from a traditional business, जो पहले ज़माने में business होता था उसमें और इसमें क्या differences है? See, if we talk about sole or company or any kind of business, traditional मतलब जहां आप सामने हो, your physical presence is there. If you want to buy grocery, you are going to the grocery shop. आपको वो जो भी सामान देता है, say you want to buy salt, तो आप salt को उनके हाथ से physically ले रहे हो. You are giving the money in cash, or if you are using the CC or DC, then you are giving that to him. Whereas आपका जो e-business है, there is no physical presence. We are only using the electronic mode, and all the business activities, even the purchasing, the procuring, everything is used, it is done using the internet. हम लोग आज के डेट पर वी आर बाइंग द ऑनलाइन. हम लोग कह रहे हैं ड्यूरिंग द पेंडेमिक हाउ डिड वी सर्वाइव? वी ऑल हैव द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस. सब्जी था, हमने आप में बोल दिया. कपड़े थे, जस्ट वी गो टू एनी ऑफ द साइट्स दैट वी हैव. हम लोग जो है उसके थ्रू, वेदर इट इज अमेजन और इट इज फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, वी गो देयर, वी सेलेक्ट एंड वी गेट इट. There is no physical salesman. वहाँ कोई physical salesman नहीं है जो आपको दिखाएगा. You are selecting it on your own, using the digital cash, using the plastic money, using some other mode, internet banking, you are paying. In the traditional business, जो scope होता है वो कम होता है. Like if I am having a shop, I'm having a shop in Dilshad Garden. So physically I can open 1, 2, 3 shops, maybe 10 shops, but they are handled by different people. Whereas in e-business,
sitting at your own place, on your own computer, at your own area, you can have the business across the globe. You don't need to go for many. There are formalities which you have to follow, but you don't need to follow a restricted path. आपको आप यहाँ से बैठकर you can sell off to any part of the world. I had मतलब 3 students. As if 5 years back they were there in our institute itself. So after the मतलब 12th standard के बाद they were not so intelligent or all 50s 100 hundreds वाले बच्चे नहीं थे. तो they were after this 12th standard तो they said कि they were doing BCom, मतलब BCom ही कर रहे थे. उनमें से एक लड़की जो थी she was doing from SOL and the rest two were doing BBA from IP and had a very good relations with me. So that time they told me that they have started a business. If I say that at that period I was like literally मुझे ऐसा लगा इतने छोटे छोटे से बच्चे जो हैं how they are going to deal with the business. And they said कि मैम प्लीज़ आप हमारे यहाँ पर आओ, मतलब कि we want to मतलब हमें आपको कुछ देना ऐसा कुछ. तो as they were very close to me तो मैंने कहा चलो ठीक है, if I come to Vivek Vihar I'll come there. तो they were having their this business at Jilmil Colony near Vivek Vihar. तो आई वेंट देयर. इट वाज उसके शिवानी जो थी उसी के घर में था. दैट गर्ल्स नेम वाज शिवानी. दे वर हैविंग नीचे जो है ना उनके ऊपर उन्होंने घर था तो नीचे जो है दे वर 2 रूम्स. आगे जो एक कमरा था दैट वाज लाइक अ रिसेप्शन. दे हैड एक वाइट बोर्ड लगा रखा था एंड दीज 3 चिल्ड्रन वर वर्किंग. दे सेड दैट दे आर बाइंग द वाइट टी शर्ट्स फ्रॉम चांदनी चौक, the white color t-shirts of different sites, and then they would be printing उसको जो है वो मतलब कि they would be doing the digital printing. They had a small and उसको जो है they are selling off. And not only white t-shirts, they were also having mugs and purse, जो पर्स होता है वो. and digital printing के through जो है they are having an online portal. I don't remember the name of that portal that they had created. तो उनका जो है उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बना लिया था एंड विद इन 1 year they were able to cover a number of areas including some of the foreign clients. So they did not require much what we call as finance. उनको ज़्यादा finance की ज़रूरत नहीं पड़ी. skillful थे, intelligent थे. तो with the use of the computer, a proper internet system एंड इन सब चीज़ों को भी जो है उन्हें यूज़ किया. सो दिस इज हाउ ई बिजनेस वर्क्स. यू कैन कवर इंटरनेशनल कंट्रीज आप यहाँ पर बैठ कर भी, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग दी हमारे जो एजेंसीज हैं आजकल जो आपका आना या जाना सेंडिंग द आइटम्स फ्रॉम वन कंट्री टू सेकेंड कंट्री इज ईजी. इसलिए that's आपका e-business. So now e-business means conducting industry, trade, business using the computer network. You can see this picture. There's 24/7. It is showing that you can create your portal and the business runs for 24/7. ट्रेडिशनल बिजनेस में आप 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद डिपेंडिंग ऑन द एरिया यू हैव टू क्लोज डाउन द शॉप, यू हैव टू क्लोज डाउन द प्रीमिसेस, यू हैव टू क्लोज डाउन योर फैक्ट्री. बट इन ई बिजनेस यू कैन मतलब आप वर्क ना भी कर रहे हो बट एवरीथिंग एक बार आप फीड कर देते हो तो एवरीथिंग कैन गो लाइक दैट. नाउ दिस इज ई बिजनेस एंड मैंने अभी पहले आपको जो बताया था दैट वाज डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस. Now what is e-business and how it is different from e-commerce? Commerce which covers large area and e-business
we can say that just as the term business is a broader term than commerce, e-business is more elaborate. It comprises of various business transactions, functions conducted electronically, including the popular gamut of transactions of e-commerce. हम Amazon को e-commerce platform बुलाते हैं. We call Amazon as e-commerce platform. It covers a firm's interaction with its customers and suppliers over the internet, commerce. E-business not only includes e-commerce but also other electronically conducted business functions such as production, inventory. Inventory means stock, management, product development, accounting, finance. आपके जो है e-business के अंदर you will, and you may have different kinds of businesses. ई-कॉमर्स, कॉमर्स यानी कि कस्टमर से सामान सप्लायर से लिया, कस्टमर को दिया थ्रू अ प्लेटफॉर्म. फ्लिपकार्ट, अमेजन, दे आर ऑल कॉल्ड एज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म. एंड ई-बिजनेस कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग विच इज इंक्लूडेड इन अ बिजनेस. देयरफॉर ई-बिजनेस clearly much more than buying and selling over the internet, that is e-commerce. You can see there, e-commerce means buying and selling, and e-business means it will be covering all the gamut of activities which also covers buying and selling. अब जो भी आप लोग सभी यूज़ करते हो, I know all of us are using the e-commerce platform. We may be buying, we may be ordering a book from Amazon. So what do the Amazon people do? They are a platform just like Zomato. They purchase, sometimes they may be having the stock in their own. So on other time उनको जैसे ही यहाँ से मिला, demand मिली, they would place it to the concerned company, they would get it and they would supply to us. Whereas e-business, everything, all the traditional business today we are doing through e-business. Even जो ट्रेडिशनल है, जो पहले ज़माने में जो लोग सोचते थे कि दे शुड हैव हल्दीराम्स, इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊंगी. हल्दीराम्स 5-6 years बैक व्हेन दिस जोमेटो वगैरह जब स्टार्ट हुआ था, तो हल्दीराम्स वाज नॉट अटैच्ड विथ एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. And sometimes, you know, while sitting at the institute also, if I needed something, so they would not be supplying. They would say कि you have to order through us only, directly to us, you will not be ordering us through the. Same was with McDonald also. आज से 5-6 years back मैं बता रही हूँ. And but उनका क्या था, they were, उनका जो था scope बहुत limit रखते थे, not all the time, not all the places. आज अब देखोगे Haldiram's is there on Zomato. It is on Zomato. This is because पहले उनका ये मानना होता था कि हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, आप यहाँ पर आओ, आप यहाँ से खाना खा के जाओ. That they were onto the traditional style. But now they understood कि अगर if they have to stand in this competition, अगर उनको इस competition में रहना है, जहाँ पर every second food, every second dish is delivered through one platform, तो we also need to. Now if you can see, McDonald is also there, even मतलब कि आपका जो हल्दीराम्स है, it is also there on Zomato. So जो ट्रेडिशनल बिजनेस पहले थे, जिनका माना था मतलब कि आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, नाउ इवन दे आर टर्निंग टू ई बिजनेस. ई बिजनेस एक अलग से कंसेप्ट नहीं है. सम ऑफ द कंसेप्ट जो ट्रेडिशनल थे, दे हैव टर्न, और आजकल जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं वो हम थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं. वेदर द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज क्वाइट वास्ट. दिस कैन कम इन योर MCQs. Why? Assertion and reason. All types of business functions, चाहे वो प्रोडक्शन हो. अब प्रोडक्शन को हम इलेक्ट्रॉनिकली कैसे करते हैं? I am manufacturing shoes, right? Shoes आपके डेफिनेटली मशीनों में ही मैन्युफैक्चर होंगे.
आई वुड बी हैविंग द ट्रेडिशनल आर्टिजन जो करेंगे, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा, आई डोंट नाउ नीड टू गो टू द एरिया, मुझे वहां जाकर रबर्स लेकर नहीं आने हैं. आई कैन गिव द ऑर्डर ऑन द कंप्यूटर इटसेल्फ. देन मुझे देखना है कि कितना स्टॉक है मेरी कंपनी में, कितना स्टॉक है. सिटिंग ऑन माई कंप्यूटर आई कैन गो थ्रू द एक्सेल शीट, मैं पूरा इन्वेंट्री देख सकती हूँ. फाइनेंस, मार्केटिंग, then administration and all the activities, that is कंपनी के लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं, हमने कंपनी को कैसे ऑर्गेनाइज करना, हमारे कितने डिपार्टमेंट्स रहेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल, वी कैन कैरी आउट यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क. इनफैक्ट आज की डेट पर, पहले तो इट वॉज नॉट पॉसिबल, बट ड्यू टू द पैंडमिक even the annual general meetings are also held virtually. पहले तो ये होता था कि the annual general meetings of the company used to be conducted in some auditorium or something like that, but now due to the pandemic, due to these all restrictions, they are also conducted. यानी कि वहाँ पर आपके जितने भी बड़े बड़े क्लास जो ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन के CEO, CFOs, all the dignitaries, they are all there on the computer. Even that, पहले लोग जो है मतलब कि if I have to recruit CEO for my company, then normally जो आपका इंटरव्यू प्रोसीजर होता था, that is आपका रिक्रूटमेंट, either the candidate has to come to the company या फिर normally जो कंपनी होती थी that would go to certain places. Now due to this e-business, even these things are also conducted through the electronic mode. So that means आपका जो है e-business का जो scope है वो आपका काफ़ी vast है. It is not only buying something and selling it. It is consisting of all the gamut of activities. Gamut मतलब all the combined activities हमारी जो है सबको हम साथ में लेकर चलते हैं. अब जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, दिस विल बी योर MCQs श्योर एंड शॉर्ट. दिस विल बी योर MCQs श्योर एंड शॉर्ट. Yes, Kritya, I'll definitely explain e-commerce and e-business. Definitely. Now the scope जो अब आने वाला है, these are all very important and these will be coming as one marker question. Means you will be asked कि ये कौन सा scope है. Identify the scope. Scope का मतलब होता है the way we conduct, we carry out the business, between whom the business can be carried out. That is scope. That is called as scope. Means who are the parties involved. बिजनेस तो सबके साथ है, बिजनेस वाले भी बिजनेस के साथ में एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी से रॉ मटेरियल्स मंगवा रही है, दैट इज ऑल्सो बिजनेस. एक कंपनी अपना फिनिश्ड गुड्स कंज्यूमर को सेल कर रही है, दैट इज ऑल्सो बिजनेस. आपकी पुरानी 10th की किताबें जो है यू वांट टू सेल ऑफ, you want to sell off, you have got a very good what can I say amount of books, आप उसको sell off करना चाहते हो, you are selling it through OLX, that is also business. company अभी जो मैंने आपको बताया था that the company is conducting the annual general meetings, the company is sending the meeting schedules through emails,
द कंपनी इज कंडक्टिंग स्टॉक इन्वेंट्री, मतलब अपनी कंपनी के अंदर ही, विद इन द कंपनी, दैट इज ऑल्सो ई बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का पार्ट है, वो सब हमारे बिजनेस का पार्ट है. टू कीप अ चेक ऑन द फाइनेंस, टू कीप अ चेक ऑन द स्टाफ, टू कीप अ चेक ऑन द स्टॉक, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ बिजनेस. हम इसको बिजनेस से अलग नहीं करते हैं. बिजनेस का मतलब ये नहीं कि मेरा प्रोडक्शन का बिजनेस है तो मैंने प्रोड्यूस कर दिया, उससे रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं, उससे रिलेटेड जितना मेरा कम्युनिकेशन है, सब कुछ मेरा बिजनेस है. And now we are conducting everything through the electronics, so we call it as e-business. So now the very first is B2B, D2C and intra B. मतलब ये हमारे ब्रॉड है. एक आपका B2E भी आता है, B2E भी आता है, बट ऑन ब्रॉडर साइड B2B, B2C एंड इंट्रा B. ये जो टू लिखा ना बेटा, दिस इज फॉर TO2. B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर्स एंड इंट्रा B मतलब विद इन द बिजनेस, एंड B2E मतलब बिजनेस टू एम्प्लॉइज, मतलब दैट कम्स अंडर इंट्रा B. नाउ कम्स B2B. Before I proceed to B2B commerce, I want to explain what is the difference between e-commerce and e-business. Now, let us say you are having a business. मतलब you are starting a business. You have to procure the raw materials from Odisha. आपको ओडिशा से रॉ मटेरियल्स लेके आना है, राइट? नाउ दैट रॉ मटेरियल्स विल रीच योर फैक्ट्री. वहां पर आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, ठीक है? यू स्टार्टेड फ्रॉम से बिहार, देन आपका जो प्रोडक्शन है दैट इज सॉरी ओडिशा, एंड आपका जो प्रोडक्शन है वो यहां पर हो रहा है. एंड यहां से जो प्रोडक्शन होगा दैट वुड बी सोल्ड ऑफ से इन यूपी, बिहार एंड अदर एरियाज, राइट? अब इसमें कौन कौन से लोग होंगे? एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, देन आपके जो है रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, प्रोडक्शन आ रहा है, तो परचेज डिपार्टमेंट होगा जो सामान को खरीदेगा. देन व्हेन इट इज, जब वो बन गया है, हो गया है, तो सेल्स डिपार्टमेंट के थ्रू जो है हम उसको सेल आउट करेंगे, राइट? ये तो मैं जस्ट आई एम डूइंग इट ऑन अ वेरी 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 व्हाट वी कैन से जनरल ग्राउंड. इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्शन के अंदर हम लोगों को चाहिए होता है रॉ मटेरियल्स जो हमें लेकर आना है. देन वी वुड बी रिक्वायरिंग लेबर्स, राइट? वी वुड बी रिक्वायरिंग कैपिटल मनी, एंड देन द सेल्स डिपार्टमेंट वुड बी responsible for revenue. It would be responsible for the sales, or what we can say is profit. Sales department जो है वो profit के लिए it would be responsible. तो अब हमारे पास क्या हुआ? हम ये raw materials लेकर आ रहे, तो we have to get it from ओडिशा, ठीक है? अब हम लाएंगे तो ट्रांसपोर्ट से ही, नो डाउट वी विल बी गेटिंग इट बाय द, maybe it is by train or it is by what we call as truck. लेकिन उसको जब हम ऑर्डर कर रहे हैं, अपने सप्लायर को हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग द कंप्यूटर्स. दे आर सेंडिंग अस द स्पेसिफिकेशंस ऑन द कंप्यूटर. हम स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं, मे बी दे आर सेंडिंग द सैम्पल्स टू अस, फिर हम ऑन द कंप्यूटर वी वुड ऑर्डर देम कि हमें ये रॉ मटेरियल्स चाहिए. जो हम इंग्लिश में ऑर्डर प्लेसिंग लेटर लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं हम. तो हमने ऑर्डर कर दिया, वी रिक्वायर दिस मच ऑफ रॉ मटेरियल्स, इतना.
नाउ वी वांट लेबर्स, हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं उनको, हम अपने थ्रू द नेट हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं. कैपिटल, वी मे बी रेजिंग IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, वी मे बी टेकिंग अ बैंक लोन, we may be taking something else, and we can use a computer to get all these documents also. आज की डेट पर you don't need to go down to the banks, they can do everything, scrutiny everything on the computer itself, right? अब आपका सामान बन गया है, परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल्स ले लिए हैं, आपके पास लेबर सब कुछ आ गया है. नाउ यू वांट टू सेल आउट थ्रू योर नेट. आप बैठे हो बिहार उड़ीसा में, आप बैठे हो उड़ीसा में, बट यूजिंग योर नेट यू कैन गिव एन इंस्ट्रक्शन टू योर सेल्स डिपार्टमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन इंडिया. आपका ये टारगेट है एंड ऑल द नेसेसरी. सो एवरीथिंग यू हैव यूज्ड कंप्यूटर्स. हाँ, डेफिनेटली देयर इज नीड ऑफ पर्सनल टच ऑल्सो. कई कई जगहों पे जैसे ट्रांसपोर्ट लेकर आना तो वो पर्सनली आएगा. आपने ये सब कुछ कर दिया. नाउ सेल्स ने, आपने उनको 100 यूनिट्स दिए थे. नाउ यू वांट टू सी इन्वेंट्री, कितना स्टॉक है. आपने अपना ERP डाला एंड यू कैन सी कितना स्टॉक है, कितना सेल आउट हो गया है, कितना प्रॉफिट हो गया है. So all these activities, whether it is procuring the raw materials, getting the labors, getting the finance, production, sales, everything, हमने इतनी सारी activities की थी and everything was done through the internet maximum. इसको हम कहते हैं e-business. Whereas हम अगर e-commerce को लेते हैं तो जब आपका सेल्स टीम जो है, मान लीजिए आपकी कंपनी ने अपना एक वेबसाइट बना रखा है एंड इट इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स यूजिंग दैट वेबसाइट, इट इज सेलिंग दैट योर प्रोडक्ट्स यूजिंग दैट वेबसाइट. और एक प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, आपके प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट जो है खरीदती है, इट इज बाइंग फ्रॉम यू, आपके सेल्स टीम से खरीदती है एंड थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म इट इज सेलिंग टू द कंज्यूमर्स. थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म इट इज सेलिंग टू द कंज्यूमर्स. ये आपका ई-कॉमर्स है. दिस इज योर ई-कॉमर्स, जिसमें जो सामान है इट इज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द कंपनीज एंड इट इज सोल्ड टू द कंज्यूमर्स यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म. सो दिस इज कॉल्ड एज ई-कॉमर्स, यानी कि ट्रेडिंग, खरीदना और सेल करना. लेकिन ये जो जितनी एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पर डाली है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, प्रोक्यूरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर्स, कैपिटल, ये सारा जो हम कर रहे हैं दे आर ऑल इंक्लूडिंग. और इस एक्टिविटी को भी, मतलब सेल्स के अंदर, अब ये सेल्स है, अब वो सेल्स कैसे कर रहा है, वेदर दे आर सेलिंग इट ऑन अ ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म और दे आर यूजिंग सम प्लेटफॉर्म टू सेल आउट, ये सेल्स का एक हिस्सा है. So sales, purchase, production, everything related to that business comes under e-business. And e-commerce is only buying that, मतलब कि procuring that stuff from the company and selling on their own platform is called as e-commerce. Right? Clear? Kriti, clear beta? Now, Yes, ma'am. I said, what is the meaning of scope? मतलब हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं. वेरी फर्स्ट इज B2B. अभी मैंने आपको बताया that we have to buy the raw materials from one supplier, we have to buy the tools from another supplier, we have to procure our laborers or employees from some concern.
मतलब कोई भी है, कोई कंसर्न है, उनसे हम ले रहे हैं। हम अपनी कंपनी में कुछ चीज़ों को वी आर नॉट डूइंग डायरेक्टली, हमने कोई एजेंसी रखी हुई है। आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी है, लेकिन आपकी कंपनी में यू डोंट हैव अ कैंटीन, आपकी कंपनी में यू डोंट हैव अ कैंटीन। आपने अपना जो कैंटीन का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट यू हैव गिवन टू एबीसी होटल, आपने एबीसी होटल को दे रखा है। लाइक इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय एयर, आपको पता है जो खाना एयर में आता है दे आर बॉट बाय वन ऑफ द होटल्स, लाइक पहले तो ताज था, नाउ आई थिंक सम अदर, सो दे बाय द एंटायर फूड फ्रॉम दैट होटल, वो लोग मतलब कि अपना एंटायर उनसे लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज B2B, यानी कि दोनों बिजनेस पार्टीज हैं एंड दे आर ट्रांजैक्टिंग यूजिंग द ई प्लेटफॉर्म। दोनों बिजनेस है, मतलब एक कंपनी के 10 B2B हो सकते हैं। आई हैव माई B2B विथ माई सप्लायर, आई हैव विथ माई, मैं जिसको मतलब कि मैं वेंडर जिसको मैं दे रही हूँ उसके साथ भी मेरा हो सकता है। आई मे बी हैविंग विथ समबडी एल्स ऑल्सो, मैंने अपनी कंपनी में जो है आई डोंट वांट टू हैव माई ओन कैफेटेरिया, तो मैंने अपना पूरा बिजनेस जो है, बिजनेस का जो कैफे है वो मैंने किसी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है, वो भी एक बिजनेस है। सो B2B, between two business organizations, it can be the suppliers, the vendors, हम और एक कंपनी कितने सारे लोगों से सामान खरीदती है। एक कंपनी अगर मान लो इट इज मैन्युफैक्चरिंग शू, तो इट मे बी बाइंग इट्स बकल्स फ्रॉम वन कंपनी, it may be buying the leather from another company, it may be buying the polishes from some other company। तो ये जो दूसरी कंपनियों से वो खरीद रही है, तो जो बिजनेस उन दोनों के बीच में चल रहा उसको हम B2B कॉमर्स बोलते हैं, राइट। इफ anyone is having any problem in between, kindly let me know, you can solve it here. For example, the manufacturer of an automobile require assembly of large number of components। अब सब कुछ तो उसके पास नहीं होता, एक गाड़ी बनानी होती है, कार बनाना होता है, उसके विंडशील्ड भी है, उसके दरवाजे भी हैं, उसके हैंडल्स भी हैं, उसके इंजन के पार्ट्स भी हैं। सो एवरीथिंग इज नॉट देयर, समथिंग ही मे बी बाइंग फ्रॉम within the country, some he may be buying overseas, so that reduces dependence on single supplier, because the factory has to cultivate more than one vendor for each of the components. So a network of computers is used for placing orders, monitoring the production, delivery of components, and also making the payments। तो ये सारा आपने देखा होगा, when you are ordering something, so you get an SMS on your phone that your order is under process, your order has been dispatched। तो ये बिजनेस में भी होता है। Likewise, a firm may strengthen and improve its distribution system, मतलब अपना सामान जगह जगह पर देना, means selling it to different areas, by exercising a real-time control over its stock in transit as well as that of different middlemen in different locations। Means each consignment of goods from a warehouse and stock at hand can be monitored। अभी मैंने जो आपको बताया था, sitting on your computer on the Excel sheet आपको पता लग जाएगा किस वेंडर के पास, किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास, किस मतलब कि शॉप में आपके कितने सामान है। The company may be one and it may be having different shops, लेकिन आप एक कंप्यूटर पे ही you will जैसे 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 सामान बिकता जाएगा वो कंप्यूटर पे दिखेगा कि that has been reduced, so you can see the stock it। and replenishments and reinforcement can be set in motion, मतलब अगर स्टॉक कम है तो हम इमीडिएटली आप रिप्लेनिश कर सकते हो। or else a customer specification may be routed through the dealers to the factory and fed in the manufacturing system for a customized production। कई बार आपकी जो है आपने देखा होगा there are some
वर्ड्स लाइक लिमिटेड एडिशन, एंड कभी कभी लोग स्पेसिफिकेशन देकर बनवाते हैं। स्पेसिफिकली जो आपके व्हाट वी कॉल एज दिग, मतलब कि हैंडीकैप जो होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कार्स, स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर होते हैं। दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन बल्क, दे आर स्पेसिफाइड, दे आर टेलर मेड। टेलर मेड मतलब दे टेल देयर स्पेसिफिकेशंस और उसके अकॉर्डिंग बनवाया जाता। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। यूज ऑफ e-commerce expedites the movement of the information, documents and money transactions. पहले आप डॉक्यूमेंट्स के खोने का, फोर्जिंग का, देयर वर मोर चांसेस। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, इवन नाउ ऑल्सो डेफिनेटली बेटा, इफ anything new invention comes, with that the demerits also come. Definitely the demerits also come, but yes, it has improved. Now there is a safer transaction. Historically, the term e-commerce originally means facilitation of B2B transaction using EDI. पहले technology to send and receive commercial documents like purchase orders or invoice, पहले यही था. But now B2B involves all kinds of business between one business to all other business companies. That is called as B2B. D2C यानी कि बिजनेस जो है डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ में, इट इज हैविंग द इंटरैक्शन। दैट्स आपके जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर ऑल B2C, दे आर ऑल B2C, दे ऑल कम अंडर ई बिजनेस एंड दे आर B2C बिकॉज हम कस्टमर्स जो है वी आर डायरेक्टली बाइंग फ्रॉम द बिजनेस। आज की डेट पर मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हैविंग देयर ओन वेबसाइट्स ऑल्सो। मतलब कि अपार्ट फ्रॉम द कॉमन प्लेटफॉर्म, द कंपनीज आर हैविंग देयर ओन, तो यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम देयर। Transactions have business firms at one end and customers on the other hand. Although what comes to one's mind instantly is online shopping, it must be appreciated that selling the outcome of marketing process. And marketing begins well before a product is offered for sale and continues even after the product has been sold. In 12th standard, you have a very big chapter on marketing. And you also have a project on marketing. Well, I don't know कि this year the schools have taken marketing only, but I don't know next year what. There are 3 projects. Marketing का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम कहते हैं मार्केटिंग मतलब है मार्केट जाकर सामान लाना और बाइंग द थिंग्स फॉर, बट मार्केटिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स। मीन्स अगर मैं सामान बना रही हूं, आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस शू, मतलब ये मैंने सोचा है, दिस आई हैव थॉट कि मैं मैंने शू बनाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि मेरे शू को मैं किसके लिए बनाना चाहती हूँ, वेदर इट शुड बी टू द ऑफिस गोयर्स, चिल्ड्रन, विमेन। मेरा मार्केटिंग वहां से शुरू हो जाता है। देन जैसे जैसे वो प्रोडक्ट बनेगा, देन इट विल कम डाउन एंड देखो ये लिखा ना, entails a wide gamut of marketing such as identifying the activities, then promotion and sometimes even delivery of products. So today the consumers are involved in all the process. आज हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट में इतने सारे सामान है, हमें चाहिए इसलिए सामान है।
So where the business is directly doing business with the customers. It can be buying, selling, it can be ब्रॉडकास्टिंग द मूवीज जो आपके नेटफ्लिक्स वगैरह है, दे आर ऑल B2C. जितने भी आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर ऑल B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर्स डायरेक्टली. वी ओनली नीड अ सब्सक्रिप्शन. हमने उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, वी कैन सी नंबर ऑफ मूवीज. सो दैट्स B2C, राइट. नेक्स्ट इज ATM speeds up withdrawal of money. Customers these days are becoming very choosy and desire individual attention. Not do they require the product features to be tailor made, but the convenience of delivery, payment at their pleasure. And with the advent of e-commerce, all this has become a reality. मतलब आज हम सामान खरीदते हैं, we also have the scheme of EMIs. We also have, हम चार जो है, we can sit on your, we don't need to walk into every shop. We can see on the computer किसकी क्या specifications हैं, the best one that suits us, we can buy it. So e-commerce के through वो सारे की सारी जो चीज़ें हैं, वो it is becoming easy. Even the payment mechanism and facilities like EMIs, then paying it in installments, they are also there. Further, B2C variant of e-commerce enables a business to be in touch with its customers on round the clock basis. Now, आप दुकान जाओगे, चलो आज तो चलो tomorrow there's रक्षाबंधन, but अगर आप दुकान जाओगे तो what will happen? What will happen? Maybe it is open till 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, but sitting at your place, अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, even बात करते करते you can order something. The companies conduct online surveys that who is buying what. आपने देखा होगा आजकल एक नया सिस्टम है AI. Do you know or not? AI. This Suvodeep is very active. This Suvodeep. Yeah. Do you know what does it do? Artificial intelligence, what does it do? Nando's robot. What you're not clear, beta? Yes, can you repeat, beta? No. Yes, Suvodeep, would you like to add something or should I continue? Yes, it helps the business activities without the help of a person. Very nice. For example, now you have bought you might have seen when you are ordering something on any platform, आपके पास immediately there is a survey. Rate करो हमें, just rate 1 to 5 के ground पे, 1 to 10 के ground पे, they ask you. Even if you are ordering the food also, then you have to rate. ये कितना था, मतलब कि कितनी, right? So the companies already have that online survey. उससे हमें पता लग जाता कि which product is in the market, which particular company is getting more benefits, which company is in demand, which company's performance is not exact. So they are there. And there is no need of a person sitting on the computer to ask you, अच्छा आपको कैसा लगा? They have the artificial intelligence, they perform all the activities. Secondly, say you want to buy a book, right? You want to buy a book. You might have put in the Google class 11 business studies. आपने इतना ही डाला होगा, right? Then what happens? आपने डाला, आपके उसमें आ गया, ऑन द स्क्रीन आ गया. अमेज़न के पास है ये, फ्लिपकार्ट है, राज कार्ट के पास ये बुक है, ठीक है. Then after some days, if you are opening your Insta, if you are opening your Facebook, you will see
जो बुक वो जो कंपनीज हैं उनके एडवर्टाइजमेंट्स भी आपके जो हैं मतलब उन जगहों पर आपके पॉपअप होते हैं. इफ़ यू हैव सीन दैट, दिस इज because the datas are captured, the companies take hold की मतलब कि जो आज की डेट पर कस्टमर किस चीज़ को पसंद करता है, एंड थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ वो कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. देन यू माइट हैव सीन आपको सामान पसंद नहीं आया, इमीडिएटली एक साइड में चैट बॉक्स बन के आ जाता है, देखा होगा आप लोगों ने. और चैट बॉक्स में बोलता है काइंडली टेल योर इसका नाम क्या है, अकाउंट नंबर, काइंडली टेल योर ऑर्डर नंबर. फिर आप ऑर्डर करते हो तो वो एक प्री मतलब कि रिक्वेस्ट मतलब वो मैसेज लिखा हुआ होता है. देन अगर आप कहते हो कि मेरे ऑर्डर में ये प्रॉब्लम है तो दे पुट यू टू द कंज्यूमर, कोई भी मतलब कस्टमर होता है उसके साथ डाल देता. हैव यू डन इट? कभी तो किया होगा. जोमेटो, फ्लिपकार्ट, सब पर कोई प्रोडक्ट आपका ठीक से नहीं आया, राइट? दे आर ऑल यूज्ड थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and they are all now part of B2C. Many consumer organizations are also working towards this direction, helping the customers in redressal of grievances. मतलब आपकी अगर आपको लगता है प्रोडक्ट में, सर्विस में there is some problem, immediately they take up the action. There is nobody. अब रात को 12 बजे आपने कोई ऑर्डर किया, आप रात को 12 बजे भी you can make a round the clock, you can have that artificial intelligence. And they try to find out whether you are satisfied. आपने देखा होगा मूवीज़ के लिए. Then about the serials, there is one word called TRP, TV television rating points. How is it calculated? B2C. They have their what we call as radars, हम मतलब कुछ भी हम बोल सकते हैं, their control system, and they monitor एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर सीरियल को कितने लोग, कितने एरियाज में, कितने टेलीविजन जो हुकअप हैं वो कितने लोग वॉच कर रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे से कि दिस पर्टिकुलर सीरियल इज ऑन द टॉप, दिस पर्टिकुलर मूवी इज अ हिट. तो दे आर ऑल कंडक्टेड. तो वो देखते हैं कि कंज्यूमर का क्या डिमांड है, what kind of serials people like, what kind of clothes people like, what kind of food people like, and everything people like उसके अकॉर्डिंग सर्विस बनता है, people like उसके अकॉर्डिंग आपके goods बनते हैं. That is called as B2C. Now providing the legal assistance, Twitter आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल. Seeking legal remedies, filing the complaints in the appropriate consumer on behalf of the consumer, they are also conducted through the internet, right? The last, we will be completing this, is intra B. इंट्रा का मतलब होता है बेटा हमेशा विद इन. इंट्रा द सिनोनिम इज विद इन, मतलब बिजनेस फर्म के अंदर भी आपके जो है दो डिपार्टमेंट्स के बीच में भी काम हो सकता है. विद इन द बिजनेस ऑल्सो देर आर सो मेनी इश्यूज. सो यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे मुझे कंपनी का इन्वेंट्री देखना है, कंपनी भी मेरी है, इन्वेंट्री भी मेरी है, मुझे कंपनी का कैश मैनेजमेंट देखना है, दैट्स आपका इंट्रा बी. और इंट्रा बी के अंदर आपका आ जाता है B2E ऑल्सो. B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉइज, sending emails to my employees, that's B2E. It is here parties involved in the electronic transactions are from within a given business firm, मतलब उसी business के अंदर से. That is why it is called intra business commerce. It is largely due to the use of intra B commerce that it has become possible that the firms to go on flexible manufacturing, क्योंकि उनको वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से. व्हाट इज द डिमांड विद अबाउट द प्रोडक्ट, दे गेट द कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. क्लोजर कंप्यूटर बेस्ड इंटरैक्शंस अमंग अदर डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस का,
परचेज से, परचेज का सेल से, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन. Is possible for the firm to take the advantage of efficient inventory and cash management, greater utilization of plant and machinery, effective handling of customers order and effective human resource management. मतलब कितनी कंपनी में कहाँ पर स्टाफ कितना है, where there is a lack of staff, where there is excess staff, आप उसको मैनेज कर सकते हो. Because everything is there on your computers, you can give the orders, you can take the orders, you can pass on. Just as intercom facilitated voice communication सबके घरों में होता है, from one building to another building, from one floor to another. Intranet means एक पूरी बिल्डिंग में there are many kinds of intranet in many companies. मतलब दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ. आजकल फाइबर नेट बहुत चल रहा है. सो से हमारी पूरी बिल्डिंग है एंड वी हैव वन नेट. यूजिंग दैट विद इन दिस बिल्डिंग एवरीबडी कैन टॉक, जैसे हम लोग इंटरनेट के थ्रू करते हैं. लेकिन इसमें क्या फ़ायदा होता है, वी कैन ऑल्सो फैसिलिटेट मल्टी मीडियाज, 3D ग्राफिक कम्युनिकेशंस, वी कैन हैव द वर्चुअल व्हाट वी कॉल मीटिंग्स, ये भी पॉसिबल है. परमिटिंग बेटर कोऑर्डिनेशन, फास्टर डेस्टिनेशन. क्योंकि जब आप बात करते हो, पहले क्या होता था, देर वॉज वन प्रॉब्लम दैट टू कंडक्ट अ मीटिंग यू नीड अ टाइम. एक डायरेक्टर नहीं है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, बट नाउ ऐसा नहीं होता. इवन द पर्सन इज सिटिंग एट हिज होम, ही कैन टेक दैट कॉल. सो यूजिंग दैट वी कैन पास. एक आदमी जो है, ही हैज़ बीन पोस्टेड इन द फील्ड, मतलब वो मार्केटिंग में फील्ड में है, आप यहाँ से यू कैन गिव योर इंफॉर्मेशन टू देम. अ फर्म्स इंटरैक्शन विद इट्स एम्प्लॉइज स्पेसिफिकली इज समटाइम्स रेफर्ड एज B2E. मतलब वो इट इज अंडर इंट्रा बी, इट इज अंडर इंट्रा बी, मतलब विद इन द बिजनेस. लेकिन जब सुपीरियर एम्प्लॉइज को दे रहे हैं फॉर सेलेक्शंस, इंटरव्यू, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, anything using the internet, that's called as B2E. They can use the electronic catalogs, ordering forms, inventory information, send the reports via emails. In fact, VPN technology would mean employee do not even have to come to the office. They can work from wherever. Meetings can be held online or televideo. अभी जब पेंडेमिक था, जब हम पेंडेमिक था, एंटायर बिजनेस वॉज B2 इंट्रा बी, एंड वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है दैट इज पार्ट ऑफ आपका इंट्रा बी. दिस C2C इज, एज आई टोल्ड यू, आपको अपनी पुरानी बुक बेचनी. यू वॉन्ट टू सेल योर बाइक, यू वॉन्ट टू सेल योर कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन. यहाँ पर क्या होता है, देर इज एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश मार्केटिंग. लाइक बार्टर सिस्टम भी हो सकता है, और इट कैन बी फॉर कैश ऑल्सो. यू कैन गो, you can place your things on the net and then the customer may buy it. सबसे पहला जो था eBay था, which allowed the sellers and buyers to rate one another. आजकल तो हमारे पास बहुत सारे हैं. OLX is one of the best examples which can even come in your paper. आपने अपना सारा सामान डाल दिया, the purchaser can see seller कैसा है, then he can use the, even if he doesn't want to pay you in cash, he can use the digital mode, he can use the internet mode, and you can buy or sell to anyone. There are some companies जो कि आपको जो है C2C के अंदर भी there are पेपॉल नोटिफिकेशन होता है कि अगर आप इनको बेच रहे हो तो दे मे इवन गिव यू दैट कि ये इंसान जो है ये ट्रस्टवर्दी नहीं है. यू आर सेलिंग डायरेक्टली टू दैट पर्सन, नोबडी इज देयर, बट यूजिंग द प्लेटफॉर्म यू कैन सेल इट. C2C में आजकल ये जो एग्जाम्पल दिया है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर
MCQs कि हम जो है हम लोग कहीं फंस गए हैं, वी आर स्टक इन द ट्रैफिक। हम FM में वीडियो दे सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, एंड FM वाले जो है दे पास ऑन टू दिस अदर कंज्यूमर्स। सो दैट इज ऑल्सो आपका C2C। द कस्टमर्स कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस विथ मतलब कि अबाउट अ वेंडर, दैट इज ऑल्सो C2C। So these are the scopes of what we call as e-business.